So the topic is creation of GL master centrally. So through GL accounts, that is general ledger accounts, we post the transaction into the system for external and internal accounting report purpose. We prepare these general ledger accounts under the account groups so that all the general ledgers with these similar characteristics can be maintained in under a common account group. So जनरल लेजर के थ्रू हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं इन एसएपी. जनरल लेजर के थ्रू ट्रांजैक्शन पोस्ट करने से हम एक्सटर्नल और इंटरनल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं. जनरल लेजर प्रिपेयर होता है अकाउंट ग्रुप के अंदर ताकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के जीएल्स एक कॉमन ग्रुप के अंडर ग्रुप हो और आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे. इसलिए जीएल मास्टर क्रिएट किए जाते हैं. टू क्रिएट द जीएल मास्टर द ट्रांजैक्शन कोड इज FS00 and this is the menu path. So go to SAP FS00, enter, click on create button. Here you have to change your company code, then your GL. हाँ सर, 1 सेकंड. ये कंपनी कोड हमें याद रखना होगा हमेशा? Obviously. अगर मेरे पास काफी कंपनी काम है तो अचानक मुझे इस सीट पे भी काम करना है और दूसरी सीट पे भी काम करना है तो याद रखना होगा. जरूर. Okay. So to decide or to check under which account group and with what number you have to prepare the GL account, you need to go to account group that you have created. So before that, open another session and go to transaction code OBD4. Go to position, enter your chart of account, continue, and this is the account group that we have maintained, and accordingly we have to start maintain our GL accounts within these number ranges. So first I'll select create, then enter the company code for which I have to create the GL account. Then I have to create a GL account for sales account. So if you switch between the two sessions, so GL account will be created under income groups and it starts with 3 lakh. So 3, continue. Here you have to select the GL account group, and the GL account group for income revenue is primary cost because it is a primary revenue. Then account group, instead of income, if you select expense, then system will show you the error that the expense group only defined for accounts. So system will show you the number range for expense group. So you are selecting the wrong account group. So income. So this is also another use of maintaining the account groups. Name your GL, sales account, short text, then the long text, sales account. Go to control data. This is called the chart of account section of general ledger. And this is called the company code data section. जनरल लेजर मतलब जो जनरल लेजर के थ्रू आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे. डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है ना. हाँ हाँ, जैसे हम टैली में लेजर बनाते हैं, किसी पार्टी का लेजर बनाया, एसेट्स का लेजर बनाया, जस्ट लाइक सेम ना. करेक्ट, सेम. देखिए अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ आपको लेआउट समझना है और डेटा पोस्टिंग कैसे करना है वो समझना है. अकाउंट्स कहीं बदलेगा नहीं, कोई भी ईआरपी हो. अकाउंट्स पोस्टिंग का तरीका वही रहेगा. देखिए बेसिक्स कहीं चेंज नहीं होंगे, ईआरपी कोई भी हो. बस इसको लेजर को इसका जीएल जनरल लेजर बोलते हैं इसमें. हाँ. ओके सर. Then can you anybody explain how this currency INR is auto-filled in this field account currency for the GL account creation during the GL account creation? ये account currency INR ये फील्ड में ऑटो फिल कैसे हुआ? जब कंपनी मेड किया था उसी समय इंडियन पेमेंट करेंसी डिफाइन किया था. इंडियन करेंसी सेलेक्ट किया होगा. कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आईएनआर सेलेक्ट किया था, इसलिए ऑटोमेटिक आया यहां पे. Correct. This is the correct answer. So your general ledger currency will always be the company code currency. Then you have to select the sort key. How you want to sort your documents in a daybook register or sales register or purchase register. So these are the methods how your transaction will be sorted in the list of transactions that you post on this GL account.
के जो रजिस्टर होंगे, सेल्स रजिस्टर, जो जीएल का रजिस्टर होगा, उसमें आपको ट्रांजैक्शंस कैसे सॉर्ट करने हैं, पोस्टिंग डे वाइज करने हैं, डॉक्यूमेंट नंबर एंड फिजिकल ईयर के अकॉर्डिंगली करने हैं. So these are the various methods of sorting the data between of, of your postings. So based on your client's requirement, how he wants to sort the data between in the day book, sales register, purchase register, you have to select the method. The standard method to sort the data is posting date, and for that the code SAP have given is 001. सर पोस्टिंग डेटा क्या है? पोस्टिंग डेट लाइक जिस दिन आप लेजर पोस्टिंग करोगे, दैट मींस पोस्टिंग आपने डेट. 10 ट्रांजैक्शन पोस्ट किए हैं सेल्स जीएल पे, तो उनका अगर आपको सॉर्ट करना है तो उसका सॉर्टिंग कैसे होगा, तो वो पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा. ओके और कुछ Yes, sir. और मेथड से करना है तो वो भी मेथड यहाँ पे मेंशन है. आप जो अप्रोप्रिएट मेथड है आपके क्लाइंट के लिए वो आप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है. बेसिस ऑफ कोड ना सर, ये जो कोड है हाँ, उसके ये बेसिस पे कोड आपको है. सॉर्टिंग करना है. हाँ, ये कोड है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है. यस सर. So this Yes, is the standard method by selecting posting date, and that sorting is called sort key. So this is the sort key. बट सर जब हम किसी इसका कोई लेजर वगैरह ओपन करेंगे तो वहाँ पर सॉर्टिंग के दो ऑप्शन रहते हैं, तो हम किसी से भी मतलब ए टू जेड कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी से सॉर्ट होगा. पोस्टिंग डेट से, डॉक्यूमेंट डेट से सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, या देखिए डिस्क्रिप्शन ये से. प्राइमरी सॉर्टिंग मेथड है. आप जो किसी लेजर के लिए आपको स्पेसिफिक मेथड से सॉर्ट करना है, दैट इज दी सिचुएशनल सॉर्टिंग मेथड. ये स्टैंडर्ड मेथड है. आपको बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले कैसे दिखेगा, एंड यूजर को बाय डिफॉल्ट डे बुक में डिस्प्ले कैसे दिखेगा, ट्रांजैक्शन सॉर्ट कैसे दिखेंगे बाय डिफॉल्ट. ओके. आपको डॉक्यूमेंट नंबर से सॉर्ट, देखिए स्पेसिफिक आपकी रिपोर्टिंग की जरूरत क्या है वो हिसाब से आप चेंजेस करोगे, वो आपको अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आप स्टैंडर्ड मेथड सेट कर रहे हो. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो उसको यस सॉर्टिंग. यस, ये तो आपको क्लाइंट ब्लूप्रिंट में बता देगा. ओके सर. आपको ये भी चीजें जितनी चीजें आप कॉन्फ़िगर करना सीखोगे वो सारा चीज आपको आपके इसका ही होगा. ब्लूप्रिंट बनाने Blueprint. से पहले जो बिजनेस स्टडी करना है उसमें आपको ये चीजें सारी मालूम करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तब आप ब्लूप्रिंट बनाओगे ना. एक्शन प्लान कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने मिलेगा. पर जब आप एक बार कंसल्टेंट हो गए, आपने सर्टिफिकेशन कर लिया, तब तो आपको सब आता है. तब तो आपको पता है कि कैसे प्रोजेक्ट हैंडल करना है, आपका जो रोल आपको दिया जाएगा वो कैसे परफॉर्म करना है, तब तो आपको पता होगा. देन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट. हियर वी हैव टू असाइन फील्ड स्टेटस ग्रुप. So for sales, so now SAP have defined the field status groups that we have maintained. We have maintained a field status variant. So the field status for revenue account group is G029 revenue account. So select it, press enter. So now whatever the field statuses that we have maintained under this transaction code, this field status group will be applicable to the sales GL. With this assignment, the statuses of the fields during the posting of sales invoice will be controlled. ये फील्ड स्टेटस के अंदर आपने जो फील्ड स्टेटसेस मेंटेन किए होंगे, कौन सी फील्ड सप्रेस है, कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन सी ऑप्शनल है, तो वो सारे कस्टमाइजेशंस, वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस असाइन हो जाएंगे ये जीएल को, और थ्रू दिस जीएल वो इनवॉइस में उसका इफेक्ट दिखेगा. जब आप ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे तो वो इफेक्ट आपको वो ट्रांजैक्शन पोस्टिंग में दिखेगा. एक सिस्टम क्या आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड है तो डेटा एंट्री किए बिना वो वाउचर आगे नहीं बढ़ेगा, वो डॉक्यूमेंट आगे प्रोसेस नहीं होगा. वो सारे एरर्स हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएंगे. इफेक्ट आपको कॉन्फ़िगरेशन के वक्त ध्यान रखना है कि एंड इफेक्ट क्या आने वाला है. सो आफ्टर मेंटेनिंग दिस डेटा, क्लिक ऑन सेव. ये फील्ड स्टेटस हम कैसे मतलब क्या है, ये कैसे पता चलता है कि इसी ग्रुप में आएगा ये रेवेन्यू अकाउंट में? सेल्स आपका क्या है, रेवेन्यू है. ओके. फील्ड सेट, ये जो फील्ड स्टेटसेस है ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए हैं. ठीक है. सो आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है वो तो इसका ये डिस्क्रिप्शन है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के. जैसे कि मटेरियल कंजम्पशन कर रहे हो तो वो मटेरियल कंजम्पशन हुआ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उसका फील्ड स्टेटस G003 है. ओके. बैंक के जीएल मेंटेन कर रहे हो तो उसका फील्ड स्टेटस G005 है. सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सिस्टम एसएपी ने डिजाइन किया है ये फील्ड स्टेटसेस. ये कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का ये जो कोड होता है ये उसको फील्ड स्टेटस ग्रुप बोलते हैं.
नहीं नहीं, इस डिफाइन करिए ना, फील्ड स्टेटस ग्रुप, इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्या है? लास्ट क्लास अटेंड किया है आपने? लास्ट कल थी? नहीं, हाँ 21st को थी। हाँ वो तो किया था। तो उसमें तो डिफाइन किया है फील्ड स्टेटस ग्रुप। क्यों? फील्ड स्टेटस ग्रुप बेसिकली ये डिफाइन करता है कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन पोस्टिंग्स कौन से फील्ड सप्रेस होंगे, कौन से फील्ड्स। ओके, एक डेमो ही दे देता हूँ आपको। अभी ये एक कस्टमर इनवॉइस है। सो यहाँ पे ये कंट्रोल होता है कि ये जो आपको फील्ड्स, डेटा फील्ड्स दिख रहे हैं, सो फील्ड स्टेटस ग्रुप ये कंट्रोल करता है कि आपने फील्ड स्टेटस ग्रुप यहाँ पे इनको असाइन कर दिया है G029। तो फील्ड स्टेटस ग्रुप में ये डिफाइन होता है कि ये जो फील्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हेडर लेवल है, ये डॉक्यूमेंट आइटम लेवल है, ये उसके एडिशनल फील्ड्स है, एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट्स। सो इसमें कौन सी फील्ड में डेटा रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी, आपने वो डेटा एंड यूजर जब तक डेटा फीड नहीं करता वो पर्टिकुलर फील्ड में आगे प्रोसेस नहीं होगा ट्रांजैक्शन। ओके, जैसे अभी ये फील्ड है कंट्रोलिंग एरिया, हमने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो ये फील्ड डेटा एंट्री के लिए ब्लॉक है, इसे बोलते हैं सप्रेस। तो ये ब्लॉक है। कुछ फील्ड्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं होंगे, अगेन इट इज कॉल्ड सप्रेस। सो ये कंट्रोल करता है फील्ड स्टेटस, और ये इन रिलेशन टू जीएल लेजर मेंटेन होता है। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? थ्रू जीएल जनरल लेजर। तो जनरल लेजर के लिए क्या फील्ड स्टेटस आपके लिए रिक्वायर्ड है, कौन सी फील्ड में डेटा एंट्री रिक्वायर्ड है, वो कंट्रोल करता है फील्ड स्टेटस ग्रुप। क्लियर? ओके। सो नाउ here you can see the hierarchy for a different company code. So you have created your first general ledger GL account. So go to this button, change company code, and here you have to change the company code, and now it will show you the groups for your company code. So the next GL that we will maintain is purchase account. So our expense group starts with 4 lakh. So I will assign that number. Primary purchase is also a primary cost. Account group expense, purchase account, purchase account. Go to control data, sort key 001, then create bank interest. Here you can give the field status as G001 general. For those GL accounts which you SAP have not specified a particular field status group, you can select the field status group as general. जो ट्रांजैक्शन के लिए या फिर जो जनरल लेजर के लिए एसएपी ने स्पेसिफिक फील्ड स्टेटस ग्रुप डिफाइन नहीं किया है, उसके लिए आपको जनरल ये फील्ड स्टेटस ग्रुप सिलेक्ट करना है, जनरल, दैट इज G001, then press enter and save. Next GL that we will define is, again we'll define a GL under expenses. So if you collapse this, you will know the last number that is used for GL account under expense group. So go to create, and here now you have to enter the next number in the number series for expense group. Primary cost or revenue, expense. So I will enter rent expense. Control data, sort key 001, create bank interest, field status group G001. Press enter, then save. So now we'll create a GL for sundry debtors. So we will create the GL under group assets. So it starts with 2 lakh. So enter 2 lakh. And since I have defined the number series of 6 digits, so I have to maintain the number for GL account within this number series and which is of 6 digits. मैंने 6 डिजिट के लिए मैंने अपने GL नंबर जो रेंज है वो 6 डिजिट डिफाइन की है, तो इसी के अंदर 6 डिजिट नंबर मुझे मेंटेन करना है फॉर माय GL अकाउंट. This is the balance sheet account. Group is asset and is sundry debtors. Sundry debtors. Continue. Sort key 001, and here we have to maintain an additional customization that is called reconciliation account for account type.
And for sundry debtors, the reconciliation account for account type is customers. Then the field status group is for reconciliation account is G067. Press enter and then save. So, what is a reconciliation account? That I will explain through an example. So, when you enter a transaction between with a customer, like you post a sales invoice with customer, the first transaction, the journal entry will be customer account debit and sales account credit. Here it is sales account, we have just prepared a GL, okay? But for customer account, the customer account is not a general ledger, it is a master record. So we need to post the transaction posted on this master with this master record to a general ledger so that we can have the double effect of this on the our financial statements for this transaction posted. So what happens when you post a transaction on with the customer for sales or the incoming payments? Same case in incoming payments, the bank account will be debited and customer account will be credited. But what happens that when you post a transaction with the customer account and you have maintained a relationship, that is reconciliation account for account type customers with this general ledger sundry debtors, then system automatically post a transaction on the general ledger sundry debtors. And सर इसे थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया ना, ये मुझे पहले इंग्लिश में खत्म करने दीजिए. ओके. So this entry will be automatically posted by the system so that these transactions will have a debit and credit effect on the general ledgers. So this is called a reconciliation ledger, where the transaction posted on customer account, that is master record, master data, this system automatically records the transaction on. At the same time, system automatically records the transaction on the general ledger sundry debtors. With this, it records all the transactions that is you posted on the customer account with all your customers. So it records a consolidated balance on a GL, and this GL balance will reflect in the balance sheet under the current assets as sundry debtors, where it contains the consolidated ledger balance of all your transactions that you are posted on customer account. So this is called the reconciliation account. रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या होता है? जब आप कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शंस एंटर करते हो, सेल्स इनवॉइस आप पोस्ट करते हो, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स अकाउंट जनरल लेजर है, लेकिन कस्टमर अकाउंट जनरल लेजर नहीं है. सो यू नीड, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपडेट करने के लिए आपको सेकेंड जनरल लेजर की जरूरत होगी, जीएल की. सो इन दिस केस सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री पोस्ट करता है ऑन सन्ड्री डेटर्स. इंस्टेड ऑफ कस्टमर, सिस्टम ऑटोमेटिकली डेबिट करता है सन्ड्री डेटर्स जीएल. जब ट्रांजैक्शन कस्टमर अकाउंट पे रिकॉर्ड होता है तो उसे कहा जाता है रिकंसिलिएशन अकाउंट. क्लियर? सो वो जो हम लोग ने बैंक में पढ़ा है, बैंक रिकंसिलिएशन, ये वो वाला रिकंसिलिएशन, ये नहीं, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन पोस्ट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स. वो ये जो सन्ड्री डेटर्स ने जो पेमेंट किया है वो बैंक डेबिट इसलिए हो रहा है यहाँ पे. बैंक तो डेबिट ही होगा ना, क्योंकि वो पैसा अगर कस्टमर ने दिया है, पैसा तो इन हो रहा है. हाँ, तो इसके लिए वही सेम एंट्री के लिए, सेम कस्टमर के लिए, राइट? यस, सेम कस्टमर के लिए. तो इसके लिए इसको तो जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप कस्टमर क्रेडिट मेमो भी पोस्ट करते हो तो आप पोस्टिंग एट बेसिक जर्नल एंट्री क्या है? कस्टमर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट इन केस ऑफ सॉरी व्हाट यू से, या व्हेन वी हैव मेड द यू रिटर्न द गुड्स. आप गुड्स रिटर्न करोगे तब कस्टमर क्रेडिट होगा और सेल्स अकाउंट डेबिट होगा. और जब हम लोग पेमेंट कैश में रिसीव करेंगे तब भी तो कस्टमर क्रेडिट होगा. हाँ, तो वो ट्रांजैक्शन पे भी आप सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन पोस्ट करेगा ऑन सन्ड्री डेटर्स. कोई भी ट्रांजैक्शन आप कस्टमर के साथ एंटर करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिक एंट्री पोस्ट करेगा. That's called reconciliation. It is called a reconciliation account. Okay, thank you. Reconciliation account
जैसे सर हम लोग डेटा डेटा का रिकॉन्सिलेशन करते हैं, डेटा रिकॉन्सिलेशन करते हैं किसी पार्टी पार्टी में से कस्टमर हो गया ना, हम्म। कस्टमर पार्टी, ठीक है सर। यस यस। तो हम लोग पार्टी को जैसे हमने माल सेल किया तो हमारे पास ऐसा आएगा, कस्टमर से आया पार्टी से आया, ऐसा आया, ठीक है। कस्टमर मतलब ये मतलब हम लोग जनरल लेजर जो समझते हैं वो कस्टमर ने इसका थोड़ा सा सैप में दूसरे टाइप का ही है, वही चीज है ना सर। कस्टमर मास्टर रिकॉर्ड है हाँ मास्टर रिकॉर्ड है भाई। और जनरल लेजर नहीं है, तो जनरल लेजर कौन सा होगा? सन्डी डेटर्स होगा। और रिकंसिलिएशन अकाउंट पे आप डायरेक्ट एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पोस्ट द ट्रांजैक्शन डायरेक्टली ऑन रिकंसिलिएशन अकाउंट, इट विल बी पोस्टेड ऑटोमेटिकली। क्लियर? So this is what is mentioned in this description, in this explanation. So now we will create another account under the assets, that will be the bank account. Continue. Balance sheet, assets. This bank GL account will be of the customer's bank account with the bank, okay, with the bankers. कस्टमर की कंपनी का बैंक अकाउंट कौन से कंपनी बैंक में है, वो बैंक का नाम से जीएल बनेगा। कंट्रोल डेटा सॉर्ट की 001, पोस्टिंग डेट, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, फील्ड स्टेटस ग्रुप, बैंक के लिए है G005, बैंक अकाउंट्स। डबल क्लिक ऑन इट, प्रेस एंटर एंड सेव। कंटिन्यू। सो द लास्ट ग्रुप विल बी द लायबिलिटीज। क्रिएट। सर हाँ बोलिए। सर एक बार एसेट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर जैसे आपने अभी 2 लाख के लिखा हुआ है जीएल अकाउंट और ये 2 लाख 1, ठीक है। अब मैं कोई एंट्री अगर पोस्ट करता हूँ इस नंबर तो ये मेरा सिर्फ जीएल नंबर है या मेरा सीरियल नंबर भी मेंशन होकर आएगा मेरी एंट्री में? थोड़ा इलेबोरेट करेंगे आपका क्वेश्चन? जैसे मेरे पास कोई इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका जो मुझे ऑटोमेटिक जनरेटेड सीरियल नंबर मिलेगा मुझे एसएपी के अंदर, जैसे अपना टैली के अंदर क्या होता है, वहाँ पे टैली का नंबर दे देता है वो, जो भी हमारा पोस्टिंग नंबर होता है, तो वो इसी ड्यूरेशन के अंदर देगा, मतलब सीरियल नंबर मेरा 2 लाख 1 2 3 4 5 ऐसे करके, या ये सिर्फ मेरा जीएल है फाइंड करने के लिए कि किस लेजर में या किस कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या बैलेंस है, क्या क्या ड्राइव कर रहा है। आप टैली में डेटा पोस्ट करते हो तो आपको आपके रेफरेंस नंबर, मेरा मतलब रेफरेंस नंबर बेसिकली। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, कंफ्यूजन भी मुझे समझ में आ गया है। लेट मी एक्सप्लेन। आप जब ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे तो वो डॉक्यूमेंट का नंबर होगा जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप को असाइन किया है। ओके ओके। आप टैली में जब डेटा पोस्ट करते हो तो टैली में क्या होता है, आपको जनरल लेजर का नाम दिखाई देता है जी। एसएपी में आपको नंबर दिखाई देगा। ओके ओके। एसएपी में सारा डेटा नंबर्स में मेंटेन होता है। ओके ओके नाउ गॉट इट। सर एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने कोटक बैंक का खोला असेट में, यदि इसका नेचर ओडी अकाउंट होता तो सर इसको मतलब आपके लाइबिलिटी ले आते इसको? कौन सा खुलेगा लायबिलिटी में बैंक का अकाउंट? यदि ये वाला कोटक बैंक यदि मेरा ओडी अकाउंट होता, हाँ तो लायबिलिटी में खुलेगा। लाइबिलिटी में खुलेगा। यस। सर ये उसके अंदर ये फील्ड स्टेटस ग्रुप G005 भी लेंगे? हाँ फील्ड स्टेटस तो सब में वही रहेगा, बैंक अकाउंट ही रहेगा। बाय चांस सर अपन ने किसी में गलत ले लिया तो उसको एडिट कैसे किया जाए? ये जीएल सिलेक्ट करो, ये चेंज बटन है, उस पे जाओ, एडिट मोड में ओपन हो जाएगा, फील्ड पे जाओ, यहाँ से फील्ड स्टेटस चेंज करके सेव कर दो, हो गया। ये भी हम आगे करने ही वाले हैं, कुछ कुछ फील्ड्स के स्टेटस, जीएल के स्टेटस हमें चेंज करने हैं। फील्ड स्टेटस नहीं चेंज होगा, कुछ और फील्ड्स इसमें एडिट होंगे किसी पर्टिकुलर जीएल में, तो तभी मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था। ठीक है, अभी एक्सप्लेन हो गया कि कोई जीएल कैसे चेंज करना है। कुछ सवाल है कि आगे बढ़े? Okay, so now we'll create GL for liability group. It starts with 1. Save. Balance sheet account, liabilities group, then sundry creditors, then control data, reconciliation account type for account type, vendors or suppliers. Sort key 001, then create bank interest, field status group, G067, reconciliation accounts. Execute this, press enter and save. Sundry debtors, sundry creditors दोनों GL का concept same है. Okay, this is for customers, this is for vendors. So GL creation clear है?
हेलो। हाँ सर क्लियर। ओके। सर एक चीज़ और पूछनी है, हाँ बोलिए। अगर किसी के जैसे नाम पे मुझे मेरा किसी के नाम के लिए मुझे जनरल लेजर बनाना है तो वो भी सेम प्रोसीजर है उसका, या उसका कुछ हाँ अलग तरीका प्रोसीजर सेम है। मतलब आप आपके जो एम्प्लॉइज है उनको एज ए क्रेडिटर दिखाना चाहते हो, है? या फिर आपको जैसे ये अपने अकाउंट ग्रुप है, यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना होगा, पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल्स करके यहाँ पे ओके होगा भी, देखो शायद यहाँ पे हो सकता है किसी ने बनाया होगा, बट आपको उसको डिसाइड करना है आप किसके अंडर बनाना चाहिए। ये देखो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, तो ये इन्होंने एक्सपेंस के ही अंडर बना दिया है। एक्सपेंस का उनका एक अलग से सीरीज किया है अभी। देखो सारे एक्सपेंस के आपको 27, 25, 26 इससे ही दिखेंगे। ओके, तो आपको नंबर सीरीज आपका एक्सपेंस का ही होना चाहिए। तो आप पर्सनल एक्सपेंडिचर करके ग्रुप बनाओ, उसके अंडर जीएल मेंटेन करो। क्लियर? ओके सर। So now we will see what is document splitting. For document splitting, when you post a transaction, say you have posted a transaction called rent expense, debit, and bank account credit. So the category of this GL will be expense, and category of this GL will be assets or balance sheet accounts. So what happens when you specify GL accounts for document splitting? The system then splits these transactions on the according to the category of their uh, the transaction category. So rent expense it will split as expense, and and this posting will be posted as balance sheet item. So with this categorization, system will categorize the nature of transaction posted. So it will update on expense account and it will update on balance sheet side. It will update the expense side of your income and expense statement, and it will update the balance sheet side, depends on asset or liability. So this is called the document splitting. The debit and credit in a total means uh, a document. डेबिट और क्रेडिट मिला के एक डॉक्यूमेंट होता है। डेबिट पोस्टिंग एंड क्रेडिट पोस्टिंग मिला के एक डॉक्यूमेंट होता है। और डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में जब आप स्पेसिफाई करते हो कि कौन से एक्सपेंस जो जनरल लेजर्स है उनकी कैटेगरी क्या है, एक्सपेंस है या बैलेंस शीट अकाउंट है, रेवेन्यू है, तो जब ट्रांजैक्शन पोस्ट करेगा एंड यूजर, तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सिस्टम ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करेगा। इससे क्या होगा, आप स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। आपको अगर आप एक्सपेंस रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट में से आपको एक्सपेंस पार्ट ही सिस्टम दिखाएगा, आपको बैंक पार्ट नहीं दिखाएगा रिपोर्ट में। सो ये चीज़ ये ऑटोमेशन के लिए या ये क्लासिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग मेंटेन किया जाता है। और ये मेंटेन होता है इंडिविजुअल जीएल के लिए मेंटेन नहीं होता, आपके जो अकाउंट ग्रुप के नंबर सीरीज है वो नंबर सीरीज के लिए डिफाइन किया जाता है। So it will be defined that I will demonstrate to you. And to define the document splitting, we have to follow this menu path. So we'll go to SAP, that is SPRO, SAP reference IMG, then financial accounting, general ledger accounting, business transactions, document splitting, classify GL accounts for document splitting. Execute this, enter your chart of account, continue, go to new entries. Here you have to define your number range interval for your account groups. So we will define each of this account group and their category of the transaction. So first we'll define one group for our liability, and system defines it as balance sheet account. Your liability side will be a balance sheet account item. So select it. Then next category is asset. Again, it is a balance sheet account. Then it is our revenue accounts. So the category is revenue, that is 30,000. Then for expense,
The category is expense. And the fifth group that we have defined is secondary cost elements. If it is not defined, then you can define it under expense. Press enter. So now we have defined the document splitting categories. When a GL will be posted under within any transaction is posted through GL account, the number which is maintained within this number is series. So now according to this category, system will split the document that is posted, debit entry and credit entry. जब भी आफ्टर ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब भी एंड यूजर ट्रांजैक्शन पोस्ट करेगा इनमें से कोई भी नंबर सीरीज के जीएल में, तो जो कैटेगरी हमने असाइन किया है अकॉर्डिंगली आपका डेबिट एंड क्रेडिट लाइन आइटम स्प्लिट हो जाएगा. अगर एक्सपेंस कैटेगरी है तो एक्सपेंस कैटेगरी में जाएगा, बैलेंस शीट कैटेगरी है तो बैलेंस शीट कैटेगरी में जाएगा, बोथ दी डेबिट एंड क्रेडिट. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग. एनी क्वेश्चंस? नो सर. ओके. सिलेक्ट सेव, क्रिएट रिक्वेस्ट. सर वैसे इनके अलावा और कितने हम लोग ऐसे जेल बना सकते हैं, मतलब अंदाजन? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड करता है. क्लासिफाई जीएल अकाउंट फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग. सर आपने जो अभी ये 5 कैटेगरीज बनवाई हैं, ये मतलब जो नॉर्मली यूज होती है आपने हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देती है, बाकी एज पर जो हमारे क्लाइंट होगा हमें उसके हिसाब से मैनेज करना रहेगा. देखिए ये नंबर ऑफ कैटेगरीज है जिसके अंदर आपके ट्रांजैक्शन स्प्लिट होंगे. Okay. तो अकॉर्डिंगली आपको स्पेसिफाई करनी है कि आपने जो जितने भी ग्रुप बनाए हैं हर एक ग्रुप कौन सी कैटेगरी में डिफाइन होगा. जी. तो ये तो 3 तो बेसिक कैटेगरीज है. अगर आप अलग से कोई आपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट ग्रुप बनाया है, कैश के लिए अलग बनाया है आपने, नंबर सीरीज अलग बनाया है जीएल का, और आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कि ये कैश अकाउंट है, तो आप यहाँ पे उसका कैटेगरी कैश अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो वो ग्रुप को. ओके. मटेरियल है तो मटेरियल के लिए अलग से जीएल बनाया आपने, तो वो आप कैटेगरी मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है. ओके. सो द डेटा इज सेव्ड. So we'll take a break and we'll connect at 8:35. सर आज जो है मतलब जब हमारे एंड होगा सेशन इस या आज की क्लास, तो मुझे ना ये पीपीटी चाहिए होंगी. आप मतलब कमेंट में भेज सकते हैं चैट में, क्योंकि मुझे एलएमएस में मिल नहीं रही. हाँ, तो अभी जो एडजस्टमेंट हुआ है वो ऐसा है कि आपको आरएम से बात करनी है. आरएम Okay. आपको अवेलेबल कर देंगे. सारे नोट्स ऑलरेडी एलएमएस पे अपलोडेड है. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है. कौन होते हैं? जो हमारे काउंसलर होते हैं वो होते हैं? हाँ, वही वो तो भाई फोन उठाते हैं ना, कोई मैसेज. सर वो ना कोई रिप्लाई करते हैं ना, कोई मैसेज का कोई ना कोई जवाब देते हैं, तो किनसे बात करें? सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वही है आपके. ये आरएम से 2-3 बार बात हुई, पर सर ये मुझे पीपीटी मिल नहीं पा रही है. नहीं वो कोई सॉल्यूशन दे पा रहे हैं इस चीज का. वीडियो तो मुझे मिल रहा है, पर मुझे पीपीटी भी चाहिए आपकी. ये सर बेसिकली क्या है ना, मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे मुझे काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे इससे रिलेटेड, क्योंकि कुछ कोड्स तो मुझे याद है, तो पाथ वगैरह के लिए मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा था. तो मैं आपकी वीडियो देख रहा था पुरानी, तो आप समझ सकते हैं मैं एक एक वीडियो को फिर उस मतलब नंबर ऑफ ड्यूरेशन पे जा करके आगे स्किप कर करके, तो उसमें ज़्यादा वेस्ट हो रहा था मेरा वो. इसलिए मुझे पीपीटी की रिक्वायरमेंट थी. बाकी मैं एक बार बात करता हूँ मेरे आराम से. अगर कोई अपडेट नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट सेशन में अगर पॉसिबल हो तो आप शेयर कर दीजिएगा. Now we will discuss the basic customizations for the controlling module. So the first thing that we need to maintain in controlling area is the maintain controlling area. All your customizations related to management of cost and profits are maintained under the controlling area. Like all your general ledgers, all your account groups in financial accounting are maintained under chart of accounts. Similarly, all the customizations that are required to be created so that you can maintain the manage the cost and profits for internal reporting, all those customizations are maintained under controlling area. जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट होते हैं, अकाउंट ग्रुप के अंडर जनरल लेजर्स क्रिएट होते हैं. सिमिलरली कंट्रोलिंग एरिया एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जिसके अंडर आपके कस्टमाइजेशंस मेंटेन होते हैं, मास्टर डेटा मेंटेन होता है फॉर कंट्रोलिंग मॉड्यूल टू रिकॉर्ड द कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स. देयर इज अ one to many relationship between controlling area and company code. So many company codes can be assigned to a single controlling area. If you have
requirement of consolidated reporting under the corporate group for all your company codes, then and if you want that for all your company codes within the corporate group you want to maintain the same controlling area, then that relationship with is called one to many, when a single controlling area is assigned to many company codes. जब आपके कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए ये रिक्वायरमेंट होगा कि आप सारे कंपनी कोड्स के लिए एक सिंगल कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करो, तो वो रिलेशनशिप को कहा जाएगा वन टू मेनी. सो कंट्रोलिंग एरिया और कंपनी कोड के बीच में वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है. कंट्रोलिंग एरिया अगर आप क्रॉस इफ यू आर मेंटेनिंग द क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग, it is used in group reporting where all your company codes are using different currencies, and now you want to maintain controlling area postings in for your corporate group reporting in a single currency, a common currency. So in that case the system suggests that it should be maintained under the currency type 30, that is group currency as controlling area currency. Cost company code cost accounting means where the sale and purchase transactions are maintained between the two company codes within the corporate group. अगर एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप के दो कंपनी कोड के बीच में अगर सेल परचेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसे कहते हैं क्रॉस कंपनी कोड ट्रांजैक्शन. और कंट्रोलिंग एरिया के लिए अगर ये रिलेशनशिप के लिए आप कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना चाहते हो जहाँ पे आपके कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर हर एक कंपनी कोड की करेंसी अलग है, तो एसएपी रिकमेंड करता है कि कंट्रोलिंग एरिया करेंसी एक कॉमन करेंसी ग्रुप करेंसी आपको मेंटेन करनी है. अगर आप if you want to maintain the same controlling area for all your company codes, then the prerequisite is all the company code should use the same chart of account and same fiscal year variant. अगर आप आपके कॉर्पोरेट ग्रुप के जो कंपनी कोड्स हैं उनके लिए सेम कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना है तो उसके दो प्री रिक्विजिट्स है. फर्स्ट है सारे कंपनी कोड्स के ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट सेम होने चाहिए और सारे कंपनी कोड्स का फिस्कल ईयर भी सेम होने चाहिए. सो दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय द कंपनी कंट्रोलिंग एरिया. एनी क्वेश्चंस? सर बी ऑनेस्ट सब बाउंस हो गया सर के ऊपर से. बाउंस हो गया. सर एक बार और से एक्सप्लेन कर देना कुछ क्या काउंट करते हैं. आपके जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स के कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स के जो रिपोर्ट्स है कंट्रोलिंग एरिया के लिए, उसके लिए जो आप मास्टर डेटा मेंटेन करोगे वो मास्टर डेटा आप असाइन करोगे फाइनेंशियल अकाउंट्स में जनरल लेजर को, तभी ट्रांजैक्शंस कैरी फॉरवर्ड होंगे टू कंट्रोलिंग मॉड्यूल. तो वो सारा डेटा मेंटेन होता है कंट्रोलिंग एरिया के अंडर. जैसे आपके जनरल लेजर्स मेंटेन होते हैं अकाउंट ग्रुप के अंडर, अकाउंट ग्रुप मेंटेन होता है चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर. सो आपके बेसिकली आप चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है? द लिस्ट ऑफ जनरल लेजर अकाउंट्स. सो सिमिलरली आपके जो कंट्रोलिंग मॉड्यूल के जो कस्टमाइजेशंस है वो मेंटेन होंगे अंडर कंट्रोलिंग एरिया. इतना क्लियर है? यस सर. यस सर. आपके कॉर्पोरेट ग्रुप में अगर मल्टीपल कंपनीज है और आपको सारे कंपनी कोड को सेम कंट्रोलिंग एरिया असाइन करना है तो उसे कहा जाएगा वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एरिया एंड कंपनी कोड, बिकॉज वन कंट्रोलिंग एरिया इज असाइन टू मल्टीपल कंपनी कोड्स. अगर ये आपके बिजनेस क्लाइंट की बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो आप ये कर सकते हो. अगर आप क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, यानी कि एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप के दो अलग कंपनी कोड्स में या मल्टीपल कंपनी कोड्स में सेल परचेस ट्रांजैक्शन हो रहा है और सबके कंपनी कोड की करेंसी अलग है, तो एक कॉमन तो आपके कॉर्पोरेट ग्रुप के कॉस्टिंग रिपोर्टिंग के लिए, प्रॉफिट सेंटर रिपोर्टिंग के लिए एक कॉमन कंट्रोलिंग एरिया करेंसी होनी चाहिए और वो एसएपी रिकमेंड करता है करेंसी टाइप 30 एज ग्लोबल करेंसी और ग्रुप करेंसी एज कंट्रोलिंग एरिया करेंसी. यहाँ तक क्लियर है? देन अगर आप ये रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो कि आपके कॉर्पोरेट ग्रुप के सारे कंपनी कोड्स के लिए सेम कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना है तो उसके दो प्री रिक्विजिट्स है. एक है सारे कंपनी कोड्स का ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट सेम होना चाहिए और दूसरा रिक्वायरमेंट है सारे कंपनी कोड्स का फिस्कल ईयर सेम होना चाहिए. तो क्लियर टिल नाउ? ओके. सो कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करने के मेथड है. एक मेथड है या तो जो बाय डिफॉल्ट कंपनी कोड दिया हुआ है 001 वो कंट्रोलिंग एरिया कॉपी करो और उसको रीनेम करो और उसके प्रॉपर्टीज आप यूज करो. द सेकंड मेथड इज यू कैन क्रिएट योर ओन कंट्रोलिंग एरिया.
There are two methods to define the controlling area or maintain the controlling area. One is through enterprise structure. It has its own menu path and the transaction code is OX06. And if you go to controlling module node, then this is the menu path and the transaction code is OKKP. So we'll follow the controlling module path. So we'll go to SAP. The menu path is display IMG, controlling, general controlling, then organization, maintain controlling area. Execute this. We are maintaining the fresh controlling area, so double click on maintain controlling area. Go to new entries. If your controlling area is same as your company code, means there is no cross company code cost accounting. You don't have a group company code, group company, then you can select the controlling area code as your controlling area is same as your company code. अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कंपनी क्रिएट करो ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए और उनके बीच वो कंपनी कोड्स के बीच कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है या फिर सिंगल कंपनी कोड है जिसके लिए आप कस्टमाइजेशन कर रहे हो, तो यू कैन सिलेक्ट कंपनी कोड controlling area as same as controlling company code, but we are going to use the cross company code cost accounting, so we will create a separate controlling area. Give the name controlling area for DL4. Here you have to maintain the relationship between the company code and controlling area. So if you do not want to maintain a group reporting, then you can select controlling area same as company code. अगर आप ग्रुप रिपोर्टिंग मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड. सो और अगर ग्रुप रिपोर्टिंग है देन सिलेक्ट क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग. देन इन दिस केस यू हैव टू डिफाइन द करेंसी टाइप एज 30, that is group currency. This currency is maintained at client level, means when the client 100 is configured for, then it is defined as USD. So by default, therefore system have maintained it as USD, and our company's currency is USD. Our group company's currency is USD, so we are okay with it. If your corporate group currency is different, then you can change the currency over here. Then सर, बोलिए. जो हमने स्टार्टिंग में ग्रुप बनाया था इस कंपनी के लिए, तो उस टाइम जो हमने करेंसी डाली थी वो यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि वो यूएस में रहे, क्योंकि हमने इसका एक जो हमारा ग्रुप था वो यूएस में करा था लंदन में. सी हमारी कॉर्पोरेट ग्रुप कंपनी यूएस में है, वहाँ की करेंसी यूएसडी है, तो ये जो डिफॉल्ट करेंसी क्लाइंट लेवल पे सेट हुई है ये हमारी सेटअप से मैच करता है. अगर मेरे ग्रुप कंपनी यूरो है तो यहाँ से मैं यूरो सिलेक्ट करूंगा, मेरी कंट्रोलिंग एरिया करेंसी ग्रुप करेंसी यूरो हो जाएगी. क्लियर? देन एंटर योर चार्ट ऑफ अकाउंट, देन फिस्कल ईयर वेरिएंट. हेलो. यस सर, जो यूएसडी डाला है मतलब जो डॉक्यूमेंट करेंसी, मतलब जो अपन जिस कंट्री में काम जिस कंट्री का काम कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी डालने का क्या उधर? नहीं, ये कंट्रोलिंग एरिया करेंसी है. आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपको ग्रुप अकाउंटिंग के लिए मैनेजमेंट रिपोर्ट्स कौन सी करेंसी में जनरेट होंगे? अच्छा, मतलब अगर बैलेंस शीट यूएसडी में सबमिट करने का तो ग्रुप करेंसी 30 डाल के यूएसडी डालने का है, अगर यूरो रहेगा तो 30 डाल के यूरो डालने का, ऐसा है क्या? यस. ओके. Then cost center standard hierarchy. Cost center standard hierarchy means it is the hierarchy that you maintain to define your level of your cost centers. Cost center standard hierarchy आप define करते हो ताकि इसके अंडर आप different cost centers define कर सको, उनके ग्रुप्स डिफाइन कर सको और एक हायरार्की डिफाइन कर सको. एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सको कि कैसे कॉस्ट सेंटर्स आपने मेंटेन किए हैं, उसे कहा जाता है कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की. एंड टू नेम इट, द नेम कन्वेंशन इज कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की अंडरस्कोर योर कंट्रोलिंग एरिया कोड. प्रेस एंटर. System will ask you that this hierarchy doesn't exist. Do you want to maintain? Then click yes. Clear? सर ये CCSH लिखना जरूरी है? Yes, this is the standard naming convention.
Okay, sir. Then you have to double click on activate components or control indicators. So double click on it. Again, this message will pop up. Click yes again. Go to new entries. Here we will define from which year you want to maintain the controlling area uh, components, or you want to activate the components of controlling area. So we'll enter the fiscal year, that is our starting fiscal year. Then do you want to activate the cost centers? Select component active, then select this checkbox also. Order management, do you want to maintain the orders? Means the purchase order, sales order, internal orders. Okay, it's basically used for internal orders. So do you want to activate? Yes, we want to activate. Other things will remain as it is. Then select project, sales order, cost objects, and then press enter. So here you have defined what are the cost objects that you want to maintain, so that you can maintain the cost center reports, and which is helpful for management to take the managerial decisions, or you can further classify your cost that you have incurred to manage your business. You can, for that you can activate these components. यहाँ पे हमने कुछ कंपोनेंट्स एक्टिव किए हैं फॉर कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, ताकि आप कॉस्ट रिकॉर्ड कर सको फॉर सेल्स ऑर्डर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, ये सब ऑब्जेक्ट्स के लिए, और मैनेजमेंट को एक ड्रिल डाउन रिपोर्ट मिले और मैनेजमेंट मैनेजरियल डिसीजंस ले सके. एनी क्वेश्चंस? सर वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट बस मैं ये जानना चाहता हूँ ये कमिट मैनेजमेंट और एक्टिव बेस कॉस्टिंग जो है ये किस केस में एक्टिव करना पड़ता है हम लोगों को, अगर करना पड़ा तो? कमिटमेंट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? हम्म। जैसे कि आप एक कुछ कमिटमेंट्स लेते हो, मतलब अगले साल मुझे इतना सेल करना है. ओके. तो वो आप उसका एक लिस्टिंग करते हो कि मुझे अगले साल कितना सेल करना है, हर एक पोस्टिंग पीरियड वाइज कितना सेल करना है, और फिर एक्चुअल सेल्स उसके सामने आप कंपेयर करते हो कि जो आपने कमिटमेंट्स दिए थे वो आपने उसके सामने कितना सेल किया है. सो ये एक मैंने एग्जांपल लिया है कि कैसे कमिट. बजट है, जैसे साल में इतना हमको सेल करना है, ये मेरा बजट है. यस. और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? आप एक आपके प्रोडक्शन साइकिल में पर्टिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि आपने एक कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर किया तो वो एक एक्टिविटी हो गया. आपने कुछ मटेरियल आउटसोर्स किया है तो वो एक एक्टिविटी हुआ. तो उस अगर वो हर एक एक्टिविटी का अगर आपको कॉस्टिंग मेंटेन करना है तो उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्टिवेट करना है. ओके. So just like trading. जस्ट लाइक Trading. नॉट ट्रेडिंग. मान लो आपने एक कार, आपके क्लाइंट एक कार मैन्युफैक्चरर है, Okay. उन्होंने एक एसयूवी बनानी है. तो असेंबली लाइन पे हर एक पार्ट्स असेंबल होता है. Okay. ओके. पार्ट्स इन हाउस बन रहे हैं. Okay. तो अगर एक डोर बनाना है तो वो डोर बनाना एक एक्टिविटी हो गया. कार का डोर एक जी, जी. एक्टिविटी हो गया. Okay. तो वो कार का डोर बनाने के लिए कितना कॉस्टिंग पड़ा, Okay. कार का बोनेट बनाने के लिए कितना कॉस्टिंग पड़ा, तो उसे बोला जाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. Okay sir, got it. ओके. क्लियर? Yes sir. Okay. So now the next part we have to define assignment of company code. Double click on this. Go to new entries, and here you have to define for which company codes within your corporate group you want to assign this controlling area. यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना है कि आपके कॉर्पोरेट ग्रुप के अंडर कौन सी कितनी कंपनी कोड्स को आपको ये सेम कंट्रोलिंग एरिया असाइन करना है. So in our case there is only one company, that is DL4. Press enter. अगर So इसके yes, जैसे अभी कंट्रोलिंग एरिया के लिए अगर मुझे एक और, सपोज हम एक और कंपनी बना लेते हैं DL5 करके, तो हम वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. yes. तो अगर उसके दोनों के लिए मुझे एक ही कंट्रोलिंग एरिया मेंटेन करना है तो दोनों कंपनी में किसी भी चीज की पोस्टिंग वगैरह होगी, मैं एक अपना टी उसके कंपनी कोड के थ्रू दोनों कंपनी की डिटेल निकाल सकता हूँ. yes. So now we have assigned the company code to the controlling area. From this customization, whenever any customization or any master data will be created under this controlling area, this company code will be auto assigned to that customization.
pay attention to this statement again, because I will ask questions on in the one of the customization. I will ask you this question. Whenever now, since we have assigned our company code under the controlling area DL4, so whenever any customizations are maintained under this controlling area, for those customizations and master records, our company code will be, all those customizations and company master records will be auto assigned to our company code because of this relationship. हमने कंट्रोलिंग एरिया और कंपनी कोड के बीच रिलेशनशिप मेंटेन कर दिया है. सो अब कोई भी कस्टमाइजेशन, कोई भी मास्टर डेटा ये कंट्रोलिंग एरिया पे क्रिएट होगा, तो वो मास्टर डेटा को, उस कस्टमाइजेशंस को ये कंपनी कोड ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा. क्लियर? अभी हम लोग ने क्या किया है, कंट्रोल एरिया का नाम भी कंपनी कोड का ही नाम लिखा है और कंपनी कोड का भी नाम DEL4 ही है. तो कंट्रोलिंग एरिया का नाम अपन चेंज कर सकते हैं जब भी करने का, तो क्योंकि कंफ्यूजिंग अभी तो ऐसा हो रहा है. देखिए यहाँ पे मैंने बहुत पहले सेशन में ही बात की थी कि मल्टीपल कोड्स मेंटेन करने से अच्छा और याद रखने के लिए से अच्छा है आप एक ही कोड मेंटेन करो सारे कस्टमाइजेशंस को नाम देने के लिए. ये रीजन है. अच्छा, लेकिन आपको अलग, देखिए आपको हर एक कस्टमाइजेशन को अलग नाम देना है जो आपकी कंपनी कोड से आइडेंटिकल ना हो, आप दे सकते हो. बट देन आपको ये सारे जो नाम है, जो सारे ये कोड्स है, आपको याद रखने होंगे या फिर आपको एक डेटा शीट बना के रखना होगा कि कौन से कस्टमाइजेशंस के लिए मैंने क्या कोड दिया है. ओके ओके, so click on save. System will prompt you a message that you have added an additional FI currency to company code. यहाँ पे सिस्टम आपको एक पॉपअप देगा कि आपने कंपनी कोड के लिए एक एडिशनल करेंसी डिफाइन की है. कंटिन्यू, क्रिएट रिक्वेस्ट, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, सेव एंड कंटिन्यू. हेलो. यस यस. सर ये इसमें एक आपने जब भी वो कंट्रोलिंग एरिया का बात किया था, उसमें प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर की बात किया था. तो जो एंड यूजर जब भी एंट्री यूज करेगा तो उसमें प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर का जो को मतलब मैं अभी एज ए एंड यूजर काम कर रहा हूँ, तो उसमें प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर के लिए पूछा जाता है क्या? तो वो क्रिएट करने का वो अलग है ना, ये जो चीज बात कर रहे हो टोटली यस अलग है वो. हम अभी वही टॉपिक सीखेंगे. ओके ठीक है. बेसिक सेटिंग्स कंट्रोलिंग एरिया के वही है, वो पार्ट है बेसिक सेटिंग्स का. Then the next settings that you have to maintain is maintain versions in controlling area configuration. Here the default version that SAP provides is 0 to maintain the plan or actual data. Here you can define the plan or budgeted figures for any of your costs, any of your expenses, and you can compare it with your actual expenses, and you can analyze the variances. The variances means the difference between the plan figures and actual figures. So this version will give you an access to maintain the plan versus actual data relationship, to analyze the variances for a particular expense or particular, you can say, activity. For that reason you have to maintain the version for controlling area. SAP एक डिफॉल्ट वर्जन डिफाइन करता है दैट इज 0, जिससे आप कोई भी एक्टिविटी के लिए प्लान वर्सेस एक्चुअल फिगर्स कंपेयर कर सकते हो. आप प्लान फिगर्स मेंटेन कर सकते हो, यानी कि बजटेड फिगर्स मेंटेन कर सकते हो कि पर्टिकुलर एक्सपेंस या पर्टिकुलर इवेंट के लिए पर पोस्टिंग पीरियड कितना बजट एलोकेट करना है, कितना प्लान आपकी कॉस्ट है कि इतना कॉस्ट मुझे इनकर हो सकता है. जब उससे एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करना है, इतना एक्चुअल कॉस्ट हुआ है, उनके डिफरेंस को बोला जाएगा वेरिएंसेस. सो अगर आपको ये रिपोर्टिंग मेंटेन करना है आपके कंट्रोलिंग एरिया में, तो आपको ये वर्जन एक्टिवेट करना होगा आपके कंट्रोलिंग एरिया के लिए. सो ये मीनिंग है मेंटेन वर्जन्स इन कंट्रोलिंग एरिया कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? यस सर. So to maintain the controlling area, version in controlling area, this is the transaction code and this is the menu path. So we'll go to SAP. This is the node maintain versions. Execute this. So this is the default version, that is 0. Here the plan, actual, WIP and variance, all the categories are
mark. So you can have all these features, and if you do not want to use it, you want your own versions, you can create through new entries and maintain your specific requirements. So select this version and you have to double click on the folder settings for each fiscal year. So double click on it. You have to maintain the controlling area, and then the plan and the version will be 0. Continue. Here by default it will maintain that from current fiscal year, including the current fiscal year, this plan data or this plan versus actual version will be defined for next 5 years. So first double click on this, your current fiscal year. Then for general indicators, activate integrate planning, and then orders or projects, you can activate the integrated planning for cost centers, business processes. Here you can have maintain the planning for your cost centers or profit centers, and with this you can maintain the plan versus actual figures for your internal orders. So that is the meaning of this two checkboxes and two activities. Clear? Then click on save. Do you want to execute this change version function in background? No. Create new request. Maintain versions for controlling area. Save and continue. So go back. Here, copying allowed means you can copy from plan figures to actual figures, you can copy from actual figures to plan figures. That we will discuss in detail when we discuss those topics. Then if all your variance analysis for the particular fiscal year is completed, then the versions are locked so that nobody can change the figures on this plan versions. So go back, can exit. The next thing that you need to maintain is the number ranges for controlling documents. So execute this, click on copy. From here, select the default controlling area, and here enter your controlling area. Copy, continue. It is copied. Now here enter your controlling area code and click on display intervals. So these number ranges and the number range intervals are copied. So when a data is carried from financial accounting to cost accounting, then the postings are made within this number range intervals. Or when you, so these number ranges are also used or particularly used for controlling area postings when you use the post the transactions through secondary cost elements. For that you need to maintain the CO document ranges. जब आप कंट्रोलिंग एरिया मॉड्यूल के लिए सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट से के थ्रू ट्रांजैक्शन पोस्टिंग होगी तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स रेंजेस यूज होंगे टू पोस्ट दी सीओ डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट. तो ये पर्पज है इसका. क्लियर? Profit center accounting. So profit centers are usually maintained to analyze the business performance of internal you mean say internal controlling areas, or means the internal business areas. So the profit centers can be your branch account, it can be your market segment, it can be your product segment. Means if you want to analyze the profitability of your particular branch, we can take an example that, or any business function like sales, production, purchase account, and so you can analyze this through profit center accounting. So all your revenues and expenses are recorded on profit centers, which can be your branch account, which can be your business functions, and for that particular branch or what that particular business function or market segment, you can analyze the business performance. प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग इसके लिए मेंटेन किया जाता है कि आपके इंटरनल जो बिजनेस एरियाज है, जैसे कि आपके ब्रांच ऑफिसेस है, आपके बिजनेस फंक्शंस है, आपके मार्केट सेगमेंट्स है, तो अगर किसी पर्टिकुलर एरियाज के लिए अगर आप
आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कंपेयर करना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि ये मेरा पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, जो पर्टिकुलर पार्ट है मेरे बिजनेस का, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। मैं कोई ब्रांच ऑफिस रन कर रहा हूँ, तो वो ब्रांच ऑफिस के रेवेन्यूज कितने हैं, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, और उनको कंपेयर करने के बाद वेदर वो ब्रांच कंटिन्यू रखना मेरे लिए फिजिबल है या नहीं। अगर प्रॉफिट्स इंप्रूव करने के लिए मुझे क्या करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, ये सारे डिसीजंस प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट ले सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। क्लियर? Yes, sir. So to activate or to maintain the profit center accounting, we have to do some customizations. So the first step is set controlling area, and this is the transaction code and menu path. So we'll go to SAP, and the menu path is display IMG controlling profit center accounting, then basic settings, then set controlling area. Execute this. So here you have to define that for which controlling area you are going to define the customizations and then maintain the master records at for the which controlling area. If in your system you are using multiple controlling areas, so till you log out, all the customizations are will be maintained for the controlling area DL4. सेट कंट्रोलिंग एरिया का मतलब ये होता है कि अगर आप मल्टीपल कंट्रोलिंग एरियाज में काम कर रहे हो, के लिए कस्टमाइजेशंस कर रहे हो, में मास्टर डेटा क्रिएट कर रहे हो, तो जब आप सेट कंट्रोलिंग एरिया करते हो, तो जब तक आप लॉग आउट नहीं करते, करंट सेशन लॉग आउट नहीं करते, तब तक आपके सारे कस्टमाइजेशन, सारे मास्टर रिकॉर्ड ये कंट्रोलिंग एरिया के अंडर सेव हो जाएंगे. द मेन एंड अनदर पर्पज इज फॉर एवरी कस्टमाइजेशंस दैट यू विल डू फर्दर, or the master records that you will do further after this customization, every time you don't need to select the controlling area. इसका और एक यूज है कि ये कंट्रोलिंग एरिया सेट करने के बाद आप जो भी कस्टमाइजेशंस करोगे, जो भी मास्टर डेटा मेंटेन करोगे, हर एक्टिविटी के टाइम आपको कंट्रोलिंग एरिया सिलेक्ट करना नहीं होगा. बाय डिफॉल्ट यही कंट्रोलिंग एरिया आपको दिखेगा जब तक आप लॉग ऑफ नहीं करते. क्लियर द मीनिंग ऑफ दिस कस्टमाइजेशन? Yes, sir. So click on save. So user have changed. Then the next customization, maintain controlling area settings for profit centers. So now we will define the controlling area settings for profit center. So this is the transaction code and this is the menu path. So the menu path is display IMG controlling profit center accounting basic settings, controlling area settings, maintain controlling area settings. Execute this. Here we have to define the profit center standard hierarchy, like we have defined the cost center standard hierarchy. So here the naming convention is profit center standard hierarchy underscore your controlling area code. Profit center local currency type, it will be 90, that is profit center currency. Confirm. What is the profit center local currency? That is the currency of the country in where the company code is maintained, that is in our case it's INR. यहाँ पे हमें ये डिफाइन करना है प्रॉफिट सेंटर करेंसी का स्टैंडर्ड हायरार्की का नेमिंग कन्वेंशन. फिर हमें ये डिफाइन करना है कि प्रॉफिट सेंटर करेंसी का टाइप क्या होगा. इट इज 90, दैट इज प्रॉफिट सेंटर करेंसी. देन उसका लोकल करेंसी टाइप हमने डिफाइन किया, तो लोकल करेंसी कौन सा होगा, तो वो कंपनी कोड करेंसी होगा. स्टोर ट्रांजैक्शन करेंसी, select this. It means if the transaction is posted in the currency other than company code currency, then that transaction will also be considered for profit center accounting. अगर ट्रांजैक्शन करेंसी आपने किसी और करेंसी में ट्रांजैक्शन पोस्ट किया है जो कंपनी कोड करेंसी नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन भी प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग के लिए कंसीडर हो, इसके लिए आपको ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है. वैल्यूएशन व्यू एएलई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कोई चेंज नहीं करना है. देन एक्टिवेट इंडिकेटर्स सिलेक्ट करना है कि ये प्रॉफिट, ये जो इंडिकेटर्स है ये एक्टिवेट हो जाए. प्रेस एंटर. एनी क्वेश्चंस? Sir, I have a question. यस. We are using transaction codes for each and every menu, right? And each is differing, like OK, EIES, like that. Is there any shortcut way to understand or to remember this transaction code? You can list out them, Okay, and with practice you will Ah. understand this. okay. Okay. So with the practice, we have to understand this. Okay. Yes. When you practice multiple times, Mhm. you will by heart this transaction codes. Okay. Okay. Okay, sir. Yeah.
then select save. Your data will be saved. So back. Create dummy profit centers. It is a required, it is a mandatory configuration. And the transaction, this is the transaction code and this is the menu path. So the menu path will be display IMG, controlling profit center accounting, master data, profit center, create dummy profit center. Execute this. Double click on create dummy profit center. The name will be dummy underscore controlling area. Press enter. Then go to basic data. Here name the basic profit center as dummy profit center. Then dummy profit center. Then here you have to assign this dummy profit center under profit center group. So if you click on this check box, the standard hierarchy will be auto assigned to this profit center group. Then if you go to indicators, then company codes, that you will find that the company code is auto assigned to this dummy profit center. How it is possible? What makes it possible? सर क्योंकि हमने Because लास्ट it टाइम will show Dell for company code structure, right? Sometime back we created for the profit center accounting, right? No. One of our previous customization, I have explained this. ये डमी प्रॉफिट सेंटर हमारे कंपनी कोड को ऑटो असाइन कैसे हुआ? सर इससे पहले जो हमने सेटिंग करी थी सीएच वाली, तो उसके अंदर जो हमने कमांड दी थी हमारी कंपनी कोड की, इस वजह से ये हमें ऑटो असाइन हुआ है यहाँ पर। तो हमने ऑटो कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट करा था और वहाँ पे हमने मेंशन भी करा था हमारे कंपनी कोड। Yes. हमने जब कंट्रोलिंग एरिया कॉन्फ़िगर किया था तो कंट्रोलिंग एरिया में हमने कंपनी कोड असाइन किया था कंट्रोलिंग एरिया को। एंड तब मैंने बताया था कि जो भी कस्टमाइजेशन हम कंट्रोलिंग एरिया पे करेंगे, जो भी मास्टर डेटा मेंटेन करेंगे, उस सारे रिकॉर्ड्स को हमारा कंपनी कोड बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा। तो वो कस्टमाइजेशन से जो असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया, वो कस्टमाइजेशन से ये ऑटो असाइनमेंट हुआ है। क्लियर? Okay. So you need to understand the relationship between the customizations. Okay. So then click on save, then double click on change profit center, then it will show you the code that you have created. Under controlling area, go to master data, and here you have to select the person responsible who is going to manage this dummy profit center. So you can enter their name. ये dummy profit center कौन मैनेज करेगा उसका आपको नंबर डालना है, नाम लिखना है. Then go to indicators, and here you have to activate this dummy profit center. So this is the pen icon. Hello. Wait. वैलिडिटी पीरियड है वो क्या रहेगा? So it will be activated. सर वो रिस्पांसिबल पर्सन जो अकाउंट्स पे है, फाइनेंस मैनेजर, वो उसका नाम डालने का है क्या? मतलब कैसे होगा वो? जो बंदा ये डमी प्रॉफिट सेंटर का डेटा मेंटेन करेगा उसका नाम आएगा. वो आपका प्रॉफिट सेंटर, वो आपका कोई हेड भी हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, या नॉर्मल या एसोसिएट भी हो सकता है. सर इसमें जो वैलिडिटी पीरियड लिखा हुआ है 1950 से 1999, हाँ? करंट तक ले सकते हैं ना? नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है. सर जो वैलिडिटी पीरियड लिखा हुआ है 1950 से 1999। हाँ, क्या है? सर ये एनालिसिस पीरियड के बारे में पूछ रहा है। ये जो एनालिसिस पीरियड अपना लिखा हुआ है 1950 को, तो आपको ये एनालिसिस जो प्रॉफिट सेंटर का एनालिसिस है, ये कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक करना है. ये जब भी सिस्टम क्रिएट हुआ है तब का डेट डाला है इन्होंने, कोई एक डेट, और ये इन्फिनिट डेट डाला है. तो प्रॉफिट को क्रिएट करते वक्त आपको ये डेट चेंज करना होता है. सो बेसिकली व्हाई वी नीड टू क्रिएट द डमी प्रॉफिट सेंटर्स. सो व्हेन यू post a transaction, you have to assign the profit centers to that particular general ledger. And if you do not assign the profit center to the general ledger, then that data posted on general ledger in financial accounting will not be carried forward or not be carried to the profit center accounting. In that case,
the dummy profit center system will automatically assign dummy profit center to that particular transaction where the end user have not assigned the actual profit center, so that it ensures that not a single transaction will be ignored for profit center reporting. जब एंड यूजर ट्रांजैक्शन पोस्ट करता है तब जीएल अकाउंट के लिए प्रॉफिट सेंटर असाइन करता है, ताकि प्रॉफिट सेंटर रिपोर्टिंग के लिए वो रेवेन्यू या एक्सपेंस का जो ट्रांजैक्शन है वो उसके लिए डेटा कैरी हो सके टू प्रॉफिट सेंटर फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू प्रॉफिट सेंटर। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन के लिए वो प्रॉफिट सेंटर असाइन नहीं करते हो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डमी प्रॉफिट सेंटर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को असाइन कर देता है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट सेंटर अकाउंट रिपोर्टिंग के लिए मिस ना हो जाए। तो ये उसका पर्पस है, क्रिएटिंग डमी प्रॉफिट सेंटर। हेलो यस सर, आपने पिछले इसमें बताया था कि ग्रीनफील्ड जो है उसमें सप्रेशन मैंडेटरी, और जो है उसमें अपन अगर मैंडेटरी करेंगे तो ये करने की जरूरत है क्या? देखिए, कुछ ट्रांजैक्शन कोड्स, कुछ जीएल ऐसे है जिसको आप प्रॉफिट्स या उसको एक्सपेंस में डिफाइन नहीं कर पाओगे। किसी ट्रांजैक्शन के लिए पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर या ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रॉफिट सेंटर नहीं असाइन कर पाओगे आप। ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसके लिए आप फील्ड मैंडेटरी नहीं कर सकते। अगर आपने मैंडेटरी किसी पर्टिकुलर जीएल की फील्ड स्टेटस में प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन एक जीएल के लिए वो प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी है, दूसरे जीएल के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो जो जीएल के लिए वो प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी नहीं है, प्रॉफिट सेंटर असाइनमेंट, तो वो जीएल का डेटा पोस्ट करते वक्त सिस्टम एरर देगा कि प्रॉफिट सेंटर असाइन करो, नहीं तो आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होगा। सो आपको वो फील्ड स्टेटस ध्यान समझदारी से असाइन करने हैं। सो आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा रिलेवेंट नहीं है। Then you have, after activation, save your dummy profit center. सेट कर दिया, ठीक है। Then the next customization is set control parameters for actual data. This is the transaction code and this is the menu path. So go to SPRO, SAP reference IMG, then controlling, profit center accounting, basic settings, controlling area settings, activate direct postings, and set control parameters for actual data. Execute, go to new entries. Here you have to maintain that from which fiscal year you want to maintain the profit center accounting. So we will enter our current fiscal year, that is the start of our data posting in SAP. Then we'll select line items. So if you select this, then all your line items for which you have assigned the profit center will be, the data on that line items will be transferred to profit center accounting. Then you have to select the online transfer. Online transfer means whenever, if an end user do not assign, whenever the system automatically assigns the dummy profit center to any documents, that data will be transferred to profit center accounting. लाइन आइटम सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि जब आप किसी डेबिट या क्रेडिट पोस्टिंग के लिए प्रॉफिट सेंटर असाइन करोगे तो वो डेटा कैरी होगा टू प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। ऑनलाइन ट्रांसफर, कोई डॉक्यूमेंट के लिए अगर आप प्रॉफिट सेंटर असाइन नहीं करते हो तो सिस्टम डमी प्रॉफिट सेंटर ऑटो असाइन कर देगा, और ये एक्टिवेशन से वो ट्रांजैक्शन प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग के लिए जो एक्चुअल डेटा वो पोस्ट हुआ है एफआई में वो कैरी होगा टू प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस कस्टमाइजेशन। एनी क्वेरीज? हेलो? नो सर, नो क्वेश्चन। Okay. So save this. So the data is saved. So now we'll see how to create a profit centers in under the controlling area. So a profits, if the profit center, one profit center can be assigned to multiple company codes, and when you create a profit center, all the company codes within the controlling area are assigned to it by default. A profit center can have an address and communication data. If the profit center is a physical location, then it will have an
एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डेटा। एक प्रॉफिट सेंटर मल्टीपल कंपनी कोड्स को असाइन कर सकते हो। जब आप प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करोगे तो जितने कंपनी कोड्स आपने कंट्रोलिंग एरिया को असाइन किए हैं सारे कंपनी कोड्स को प्रॉफिट सेंटर बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा। अगर प्रॉफिट सेंटर फिजिकल लोकेशन है तो उसका एड्रेस और कम्युनिकेशन डेटा भी हो सकता है। So to create a profit center, there are two methods. One is uh, through transaction code KE51, and this is the menu path. And the second thing is through standard hierarchy. So the difference is, in first method, you have to create the profit center, then you need to define a group also in another transaction, and then you have to assign them to the profit center standard hierarchy. And here, in the second method, all these customizations are you can perform under a single transaction code. फर्स्ट मेथड से अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको पहले प्रॉफिट सेंटर डिफाइन करना है, फिर ग्रुप डिफाइन करना है और फिर उसको स्टैंडर्ड हायरार्की को असाइन करना है। सेकंड मेथड से ये सारे कस्टमाइजेशन एक ही ट्रांजैक्शन कोड में आप डिफाइन कर सकते हो। सो द स्टैंडर्ड मेथड इज द स्टैंडर्ड हायरार्की मेथड टू डिफाइन द profit centers. So we'll follow the second method. So go to SAP, then open another session, and the menu path is SAP Easy Access, Accounting, Controlling, Profit Center Accounting, then Master Data, Profit Center, Individual Processing, Master Data, then Standard Hierarchy, and Change. Execute this. So you will find the system will display the controlling area, and you will find the profit center is also defined under it, under the standard hierarchy. So first we'll rename the standard hierarchy with profit center standard hierarchy to DL4, press enter. If when you access this transaction and you find that if the controlling area is different than your controlling area, then go to settings, and here also you can perform the customization set controlling area. So select this, the function save your entries first. Okay, so first we have to save the end because we have already changed it. If you go to settings now, set controlling area, no we have not yet saved. So हमने ये चेंज किया है इसीलिए सिस्टम हमें वो करने नहीं दे रहा है, पहले उसको सेव करना पड़ेगा। सो यहाँ से आप कंट्रोलिंग एरिया चेंज कर सकते हो। देन टू डिफाइन द प्रॉफिट सेंटर, select the standard hierarchy, click on create, and then lower level group. And here the naming convention will be profit center standard hierarchy underscore your group, name for your group. And you can name the group as revenue, press enter. Select this group, create profit center. And the naming convention for profit center is profit center, then your controlling area code, then the code for your group, then your profit center and the number of profit center. Why we have created the group? Because all our profit centers for the revenue are grouped under the profit center group revenue. So all the revenue profit centers will be listed in one group. So it will create an uniformity. Then we have defined the group, then profit center name and one. So if your profit center is a physical location, like a branch office, say Madras, Mumbai, Delhi, Calcutta, then for each location to record the sales to the profit center, you have to create a different profit centers. अगर मान लो आपके 5 ब्रांच ऑफिसेस है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, और हर एक के सेल्स ट्रांजैक्शंस, हर एक लोकेशन वाइज सेल्स ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करना है आपके सेल्स के लिए, तो हर एक लोकेशन के लिए आपको डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर्स बनाने होंगे। सो उसको आप नंबर दे सकते हो 1 2 3 4। सो ये पर्पस है, एक और एक पर्पस है कि आपको प्रॉफिट सेंटर ग्रुप क्यों बनाना है। सो हियर यू कैन नेम द प्रॉफिट सेंटर एज सेल्स प्रॉफिट सेंटर, then the person responsible who is you will be responsible for this maintaining the data. Then go to indicators, company code, you will find your company code is auto assigned. Then if you have an address and communication data you can enter. So back to basic data,
then you will find the status is inactive. Here you can also maintain the analysis period, for which period you want to analyze the data for profit center accounting for this particular profit center. So you can maintain those dates, start date and end date. So here select activate. You have to select activate again. The status is changed to active. So this is how a profit center can be created. Any doubts? अभी जो मैं प्रॉफिट सेंटर पे काम करता हूँ, जैसे हम्म। मेरे पास मेरा वो प्रॉफिट सेंटर नंबर है, ठीक है, कोई नहीं यहाँ पे नाम है। अब उसके अंदर जो एंट्रीज वगैरह मैं देखता हूँ रिकंसिलिएशन की, ठीक है, तो वो रिकंसिलिएशन की जो एंट्रीज आ रही हैं वो राहुल और करण पोस्ट करते हो भी सकता है, क्योंकि पर्सन रिस्पॉन्सिबल और यूजर रिस्पॉन्सिबल में फर्क ये है कि अगर ये मान लो फिजिकल लोकेशन है, ये अगर फिजिकल लोकेशन है तो करण वहां का सुपरवाइजर भी हो सकता है, ब्रांच हेड भी हो सकता है। तो जिसके अंडर ये ट्रांजैक्शंस मेंटेन हो रहे हैं वो है पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ओके। वो लोकेशन के लिए जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो किसके अंडर मेंटेन हो रहे हैं? तो करण के अंडर मेंटेन हो रहे हैं। ओके। ओके। यूजर रिस्पॉन्सिबल में आप डेटा डाल रहे हो तो वो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है जो ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहा है, तो वो होता है यूजर रिस्पॉन्सिबल। ओके। ओके। So similarly, we will now create the other profit centers. The process is same. Select the standard hierarchy, create lower level group, profit center standard hierarchy, and then group inventory. So I will rename it as inventory, press enter. Now select the group, create profit center, then profit center, your controlling area code, then group name, then profit center name and number. सर ये जो हम प्रॉफिट सेंटर के अंदर प्रॉफिट सेंटर डेल्टा 4 और आईएनपी S1 लिख रहे हैं, ये लिखना जरूरी है या इसके अलावा हम कुछ और भी लिख सकते हैं? ये स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है, अगर आप अलग से मेंटेन कर रहे हो यू कैन। जैसे मेरे वहाँ जो है नंबरिक चलते हैं 1 2000 5000 तक चलता है, बेसिकली यस, वो उनके कर स्टोर सकते है, हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली उसको मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मेरा स्टोर नंबर 1 का 1 डाल सकते आपके हैं हम 2। क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ ही वांट्स टू मेंटेन इट्स प्रॉफिट सेंटर, हाउ ही वांट्स टू नेम देम, वो अपने प्रॉफिट सेंटर को क्या नाम देना चाहता है, क्या कोडिंग देना चाहता है, वैसे आपको करना है। ओके। बट ये स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है। सो प्रॉफिट सेंटर, परचेस प्रॉफिट सेंटर। हेलो यस, सर, सब न्यूमेरिकल हो सकता है क्या? क्योंकि मेरे कंपनी में सब न्यूमेरिकल प्रॉफिट सेंटर है। हो सकता है। और सर कंपनी कोड भी न्यूमेरिकल हो सकता है क्या? क्योंकि मेरे यस कंपनी में वो भी है। यस, मीनिंग ही है अल्फा न्यूमेरिक। नहीं नहीं, सब न्यूमेरिकल है, अल्फा अल्फा है अल्फा, ही नहीं। अच्छा तो अल्फा न्यूमेरिक का मीनिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर। हाँ। तो जब अल्फाबेट नंबर का कॉम्बिनेशन है तो अल्फाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है। अच्छा, तो चारों डिजिट न्यूमेरिकल भी हो सकता है। यस, ओके। जितने भी आप 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड देख रहे हो वो सारे न्यूमेरिक हो सकते हैं, सारे अल्फाबेटिक हो सकते हैं। ओके। अच्छा, नहीं मेरा कंपनी अभी ECC 6 यूज कर रहा है अभी भी, हम्म, तो मुझे लगा क्या ECC 6 में ऐसा है और खाना में ऐसा है, ऐसा लगा। नहीं नहीं, ओके। सेम ही है। So the person responsible, then the status is inactive, so select activate and then activate it again. So now again select profit center, standard hierarchy, then lower level group, then expense, press enter, select group, create profit center, rent expense profit center, then person responsible, then activate and activate it again. So now we have created the account groups and the respective profit center under the account groups, and we have activated them. So now click on save to save the customization. So how to create the profit center, the concept is clear? यस सर। Okay. So this is the graphical representation.
how to name your profit center. So the next concept that we will discuss is cost center accounting. So the cost centers are maintained to record the cost for a particular activity, for particular process. Again, like profit centers, cost centers can be a physical location, can be a business function, or can be a product segment or market segment. With the help of cost centers, management can analyze the cost that company code is incurring for any particular activity. So then management can take a decision or make an analysis how to reduce the cost, which will maximize the profits, or which can also minimizes the cost burden on the company code. कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन किया जाता है पर्टिकुलर ब्रांच के लिए क्या कॉस्टिंग हो रही है, पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन जैसे सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, उनके लिए क्या कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, किसी मार्केट सेगमेंट में क्या कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए क्या कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, वो डेटा मेंटेन किया जाता है अंडर कॉस्ट सेंटर रिपोर्टिंग, जिससे मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या प्रोसेस के लिए क्या कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग हेल्प करता है टू मैनेजमेंट. सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग. एनी डाउट्स? No, sir. Okay. So for cost center accounting, we have already done the customizations while defining the controlling area. So here also the process is same as we have defined the profit centers. So here also you can create a profit center through transaction code case 01, or you can create through standard hierarchy. Again, we will follow the standard hierarchy method. So go to SAP. अच्छा सर, वैसे प्रॉफिट अकाउंटिंग जो है वो तभी लागू होती है ना जब ब्रांच अकाउंटिंग होती है, या हमारी नहीं। ब्रांचेस हो अलग अलग? नहीं 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 नहीं, आपको देखो प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग ब्रांचेस के लिए कब यूज किया जाता है, जब आपने बिजनेस एरिया मेंटेन नहीं किया है, तब ब्रांच ऑफिस एज अ प्रॉफिट सेंटर मेंटेन होता है. Okay. Okay. Sir, can you go back to the note 1 minute? Where I can go? Notepad, the document PDF. Yes. Okay, I've noted the transaction. Thank you. So the menu path is हेलो ये. हाँ बोलिए सर, बोलिए. अभी आपने जस्ट बताया क्या बिजनेस एरिया अगर डिफाइन नहीं किया होगा तो अपने को प्रॉफिट सेंटर का यूज आप मतलब प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करने का है अपने को, ऐसा है ना सर? नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट सेंटर में क्या है कि अगर प्रॉफिट सेंटर फिजिकल लोकेशन है तो उसका एड्रेस और कम्युनिकेशन डेटा होगा. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ब्रांच ऑफिसेस एज बिजनेस एरिया मेंटेन नहीं किया है और उसको आप एज अ प्रॉफिट सेंटर मेंटेन करना चाहते हो, तो आपके प्रॉफिट सेंटर्स फिजिकल लोकेशंस होंगे. ओके, या फिर वो आपके देखो हमने प्रॉफिट सेंटर असाइन डिफाइन किए हैं एज बिजनेस फंक्शन, सेल्स, देन परचेज, एक्सपेंस, ये जो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उनके हिसाब से हमने प्रॉफिट सेंटर डिफाइन किए हैं. ओके, ओके, आपको हाँ बोलिए. एक मिनट, प्रॉफिट सेंटर में अपन शॉप, वेयर हाउस वो भी क्रिएट कर सकते हैं क्या? यस. ओके, देखिए प्रॉफिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज यही है कि आपके जो फाइनेंशियल्स है उसको आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कैसे एनालाइज करना चाहते हो. ओके, उसको फर्दर ड्रिल डाउन कैसे करना चाहते हो. देखो आपको मार्केटिंग एक्सपेंस है, आपने जीएल बुक किया, मार्केटिंग हो गए, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, आप उसको कुछ मेथड्स है जिससे आप मार्केटिंग एक्सपेंस जो 1 लाख है, तो आप वो 1 लाख को फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि वो 1 लाख कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे कितना खर्चा हुआ है मार्केटिंग एक्सपेंस का. ओके, सो जो वो मेथड से आप उसको 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो वो आप थ्रू प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. ओके, तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का पर्पज ही यही है कि आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है कॉस्टिंग वाइज. ओके सर. So to create the cost center, the transaction, the menu path is SAP Easy Access, then accounting, controlling, cost center accounting, master data, standard hierarchy, and change. Execute this. Here we have defined this code during the customization activity, maintain controlling area.
From there, it is system have auto defined over here. So we have to name the standard hierarchy, that is cost center standard hierarchy for DEL4. Press enter. So it will change the description. Select the standard hierarchy, create lower level group. We will create the same lower level groups. Now it will start with C. Cost center standard hierarchy underscore group name. Revenue. Press enter. Select the revenue, group revenue, create cost center, then controlling area code, your group name, then the cost center name and number. Hello? Yes. कॉस्ट सेंटर तो सिर्फ एक्सपेंस के लिए होता है ना? प्रॉफिट सेंटर्स में कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट और एक्सपेंस दोनों एनालाइज होता है, तो आपको कॉस्ट सेंटर की भी जरूरत है. ओके. रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करोगे तभी प्रॉफिट आएगा ना. देन पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अगेन concept is same. Then cost center category. So these are the few categories that is defined. So our cost center is for sales, so we can select this category as sales. Then go to organization. The functional area entry will be ignored. Okay, continue. So this field is suppressed. So what it means that we will discuss later. Business area, now it is a mandatory field. So you can assign the business area. So I will assign, you can assign any of this business area. Then here you have to assign the profit center under the cost center. So select this, search. So this is the profit center that we have defined for revenue. For sales profit center, double click on it. The data, how the data is flow from financial accounting to cost controlling. First, the transaction is recorded on the general ledger. While posting the general ledger, the end user will assign cost center to the general ledger. From cost center, the data will be carried to cost center. And from cost center, since the profit center is assigned under cost center, the data from cost center will carry to profit center. So this is how the data is carried from cost center to from financial accounting to controlling. डेटा कैसे फ्लो होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप डेटा पोस्ट करोगे ऑन जनरल लेजर को आप असाइन करोगे कॉस्ट सेंटर. सो जनरल लेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, वहां से डेटा पोस्ट होगा टू कॉस्ट सेंटर, जो कंट्रोलिंग एरिया का पार्ट है. कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर के अंदर आपने प्रॉफिट सेंटर असाइन किया है, वहां से डेटा कैरी होगा टू प्रॉफिट सेंटर. सेम कॉस्ट सेंटर से बिजनेस एरिया पे भी कैरी होगा क्योंकि आपने बिजनेस एरिया कॉस्ट सेंटर के अंदर असाइन किया है. सो ऐसे डेटा फ्लो होता है फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू controlling module. Clear? Sir, is there any kind of flow chart to understand this flow from financial accounting to controlling area? No, you can create for your Okay. own reference. There is no standard for that. First 4 indicators are not locked. Select as locked. Means if you lock any of these indicators, then these 2 indicators, if you lock, then you cannot maintain a plan data for this cost center, or you cannot maintain the actual data against the plan figured against the plan data for this cost center. आपको इंश्योर करना है कि ये चारों इंडिकेटर्स अनमार्क हो एज लॉक्ड, बिकॉज अगर इसमें से कोई इंडिकेटर लॉक है तो ना ही आप प्राइमरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आप रिकॉर्ड कर पाओगे ये कॉस्ट सेंटर पे, ना ही कोई बजटेड फिगर मेंटेन कर पाओगे ये कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट. सो आपको ये इंश्योर करना है कि ये चारों बॉक्स अनमार्क हो. देन अगर ये फिजिकल लोकेशन है तो उसका एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डेटा होगा, अगर नहीं है तो गो बैक. एंड लाइक प्रॉफिट सेंटर वी डू नॉट नीड टू एक्टिवेट द कॉस्ट सेंटर. व्हेन यू सेव इट, it will automatically activated. So we will create the similar cost centers as we have created the profit centers. So select standard hierarchy, create, then lower level group, then inventory, press enter, select group, create cost center, purchase cost center,
For purchase cost center category, you can select production, you can material, depend on your requirement. Okay, here again select the business area. Again, if you are maintaining the cost centers, here I am maintaining the cost center as the function or the process, that is purchase, sales. Okay, and if I am maintaining, I have 4 different business areas: Bangalore, Delhi, Calcutta, Madras. Then I have to create 4 cost centers for purchase, 4 cost centers for sales, defining each individual cost center for each business area. अगर मेरे 4 बिजनेस लोकेशंस है और मुझे चारों के लिए सेल्स कॉस्ट सेंटर डिफरेंशिएट करने हैं, तो ये कॉस्ट सेंटर जो परचेस है, सेल्स है, मुझे चारों बिजनेस एरिया के लिए बनाने पड़ेंगे, या फिर ये फील्ड मुझे ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ देन बिजनेस एरिया वाइज मेरा कॉस्ट सेंटर मेंटेन नहीं होगा. ओके, देन assign profit center, purchase, then check indicators, back to basic data and save. It will get activated. So again select standard hierarchy, create lower level group. Now we'll create for expense, enter, select this cost center, rent expense cost center. It can be a service cost center, it can be administration, business area, assign the cost center for expense, check indicators, and then save. So this is how a cost centers can be created. Clear? Please like, share, and subscribe to SAP FIQ Guru for more valuable learning.